Hi guys, how are you doing? Thank you so much. Again, I'm here on Instagram and you guys are here. I'm coming with Jagdish Purohit. He's a good friend of mine. Let's take him alive. Hello guys, welcome to my broad. I really appreciate absolutely guys because जगदीश से मिल रहे जगदीश पुरोहित शूटिंग कैसा रहा माइंड ब्लोइंग रहा मुकुंद शूटिंग माइंड ब्लोइंग रहा मेरा जगदीश पुरोहित को हम ब्रॉड पे लेते हैं Hey buddy, what's up? जगदीश how are Yo! you bro After a long time, it's lovely to see you. Oh, that's lovely to see you beautiful. How are you doing, lovely buddy? to see you lovely to see you how's you doing buddy Oh, what's absolutely up fine. Missing you badly, missing those all days what we were had spent time together. I All also days we're missing. lovely to see you, yaar. Lovely to see you. Same I here. miss you so much, yaar. So Same much. here, buddy. After a Same long here. time, yaar. Long time. Long, yes, very long time. We are keep touching with web and all, but not physically. It is you are busy and me too. So maybe, but we both are happy end of the day. So that's really great news for all of us. It's all God's Yeah, it's grace. all created by God. We Yeah, are, we are, we are not the doer because we are not the doer at all. Yeah, yeah, truly, he made us doing things and we are doing this. That's the exactly, God's grace, absolutely. exactly. और क्या चल रहा है भाई क्या क्या लाइफ में कैसा चल रहा है यार बस बस बढ़िया चल रहा है देखो वैसे तो हेतल पुनीवाला को कौन नहीं चाहता है ये देखिए आज का शो हमारा कोई ना मैं होस्ट कर रहा हूँ ना हेतल होस्ट कर रहा है वी आर होस्टिंग ईच अदर वी आर जस्ट गॉसिपिंग अवर लाइफ अवर जर्नी लव यू वेरी मच लव यू सो इट्स अ वेरी शॉर्ट मैं बताऊं तो हेतल इज अ सूरत सुपरस्टार सूरत रॉक स्टार एंड सूरत first celebrity ever who had a name in a blast name in a Bollywood and Mumbai and worldwide. He done more than 300 advertisement. He known as a advertisement king in थैंक यू Bollywood. सो मच So that's his थैंक first यू introduction. He done many movies with all the superstar Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, Priyanka Chopra, Anushka Sharma, many more, and I'm dozens of television and many web series. A very latest web series, Special Operation स्पेशल is a ऑप्स very hit web series, and विद नीरज पांडे this all journey is by Hetal Puniwala. So I'm very lucky to have you as my friend in my life, and now live session with you. Thank you so much, Hetal. Love you. You are a wonderful friend. You are a wonderful, amazing person. You have a wonderful soul. That is why we connect because we have a very natural source. Yeah, क्योंकि ये जो सोर्स है ना वो सोर्स एक ही होता है और वो जहां जहां जिन लोगों में वो सेम होता है ना वो एक दूसरे से कनेक्ट करने लग कहीं जाते ना हैं. कहीं कनेक्ट हो ही जाते हैं. Yes, truly, So sir. it's really amazing to be with people like you, and I always appreciate God Almighty that makes me easily connect people like you. And Oh, I'm thank you. really grateful having you in my life. मुझे याद है अभी भी कि जब भी गरबा हम खेलने जाते थे वहां पर तो हमें पता होता था सूरत में कि अरे वो गरबा खेलने जा रहे हैं अरे कौन जज कौन है जगदीश पुरोहित Thank you. Thank you. एक बार तो ऐसा हुआ कि दोस्त लोगों को पूछा तो हाँ वो हाँ. एक दोस्त है ना वो नया था उसको पता नहीं था तो उसने पूछा कि अरे ये गरबा में जज भी होते हैं मैंने बोला, हाँ जज भी होते हैं कौन है जज तो हम सारे दोस्त पांचों दोस्त ऐसे देख रहे हैं Okay. बोले क्या हुआ सो बोलते हैं कि इज इट टू बी आस्क्ड Is यू it to be कांट आस्क asked? दिस Yes, yes, क्वेश्चन yes. यू कांट आस्क दिस क्वेश्चन एक्चुअली एंड जगदीश मैं यार तुम्हारी प्रोग्रेस में काफी सालों से देख रहा हूँ यार काफी सालों से
टच बाय माय हार्ट. बट यू नो हम दोस्त इसलिए है बिकॉज यू वर्क हार्ड एंड आई रियली अप्रिशिएट कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो. हमेशा मैं पोस्ट देखते रहता हूँ तुम्हारा. तुम्हारी अब्रोड टूर्स कितनी होती है, माय गॉड. मुझे तो याद भी नहीं है बीच में जब भी तुम जाते हो, या इटली में होते हो, या फ्रांसिस होते हो, या अमेरिका में होते हो, या जर्मनी होते हो. माय गॉड, इतना सारा काम. रियली अप्रिशिएबल. सी ये मुझे कोई वही अप्रिशिएट कर सकता है जो इतना हार्ड वर्क कर सकता है, और जो इतना हार्ड वर्क करता हो डेडिकेशन के साथ. सूरत, थोड़ा सा इसको इसको मैं थोड़ा सा रीमोल्ड करना चाहूंगा. प्लीज प्लीज. ये अप्रिसिएशन वही कर सकते हैं जिन्होंने नीचे से काम करके ऊपर पहुंचे हैं, यस यस, जो अपने मूल से आप, काम करके या पल तक पहुंचे अपने जी, आप. अपने आप, वो लोग यस ये बात को समझ सकते हैं, आपकी यस यस जर्नी को समझ सकते हैं. यस यस. बाकी तो क्या है यार, जर्नी में तो ऐसा है यार कि बहुत नीचे से शुरुआत किया था यार जगदीश या भाई. मैंने आई मैंने नो जब फ्रॉम यहाँ योर पर, फर्स्ट तुम्हें डे. तो पता है सब कुछ, मैं या वहां आई पर नो, थिएटर करते रहते थे हम लोग सूरत में, आई और नो वहां से फॉर शुरू जस्ट किया था. that days was memorable days as well. Yeah, एब्सोल्युटली. मैं आज yeah. भी याद करता हूँ. मतलब ऐसा होता है कि हर रोज ब्रॉड पे लोग पूछते हैं सर आपकी जर्नी के बारे में बताएं. इतनी इंस्पिरेशनल हो गई है ना अभी, तो ऐसा लगता है कि हाँ राइट. मतलब किसी को बताते ना तो बोलते हैं वाह सर आपने इतनी मेहनत की है. हम्म. करेक्ट, आपने इतनी मेहनत की है इसीलिए आप यहाँ पर हो. दैट इज वॉट आई एम सीइंग इन यू. यू आर माई रिफ्लेक्शन. आई ऑलवेज सी माई रिफ्लेक्शन इन यू. तुम हमेशा मेहनत करते रहते हो, सूरत में भी लगे रहते हो, अपने काम में लगे रहते हो. नो डाउट कभी हमारा ऐसा आमना सामना नहीं हुआ कि हमने साथ में काम किया हो जी या साथ जी. में काम करने की जरूरत पड़ी, बट हमेशा वी बैंग ऑन ईच अदर, वी बैंग विद ईच अदर. हम हमेशा एक दूसरे से टकराते रहे. कहीं ना कहीं, कहीं मैं सेलिब्रिटी गेस्ट में होता हूँ तो तुम वहां पर जज में आ जाते हो. सो दिस इज रियली अमेजिंग This is थिंग फॉर really मी. amazing. It's life is a very wonderful, and we are very यस. fortunate to grace of God, and we are doing wonderfully. So मैं हेतल, काफी मेरे पास मैसेजेस भी है कि आप एक हेतल. सेकेंड. मेरा मेरा एक फ्रेंड मुझे पूछ रहा है कि एयरटेल भाई आपका शूटिंग कैसा नागिन रहा. 5 कब है? हाँ. थैंक यू सो मच भाई. मेरा आज शूटिंग था. मैंने आज डाबर सैनिटाइजर का ऐड किया, और लोग मुझे ऐड किंग के नाम से जानते हैं. जनरली ऐसा था. एक मैं या इसके सॉरी मैं उसके रिलेटेड एक इंसिडेंट है मेरा, बहुत सुंदर है. एक मिनट, वो मैं काफी आपके लोग साथ ज्वाइन शेयर कर रहे. करूँ मनीषा जी, प्लीज. अंकिता मैम, पायल, हेमंत, पायल, Vaibhav, वाह. very renowned. These all are Hetal, very renowned people from Surat. Some are fitness models, some are designers, some are artists. थैंक यू. Shivani थैंक यू. Shapariwala, Nanu Mishra, many people are थैंक joining यू. us. So please थैंक यू carry सो on. मच. Yeah. थैंक यू सो मच. मेरी तरफ से भी काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं. सिंपल जी कावेरी, जी. पार्थिव, सबका बहुत स्वागत है. मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ गाइस. हाँ, हमारे yeah, पास it's many वैसे भी people are there. एक Yeah. घंटा ही है, और एक घंटे में ये कट हो जाएगा. सो मैक्सिमम 1 घंटा. Yeah. आई रियली विश पीपल के आपके कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन प्लीज या आस्क, मेरे पास और वी काफी कैन सवाल है टॉक. आपके, लेकिन पहले हमारी जो यहाँ से हाउ बात स्वीट. अटकी थी एड किंग के लिए, हाँ उस प्लीज पे प्लीज नहीं, हम. आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन तो मिलती रहेगी उसी में से. प्लीज. हाँ, कि हेतल, काफी लोग, जैसे मैंने मेरी पोस्ट देखी लोगों ने कि हेतल आने वाला है, तो काफी लोग आपसे पूछना भी चाहते थे, तो मुझे मैसेज करके भी पूछा है कि हेतल, आप सूरत की जर्नी से मुंबई कैसे आप पहुंचे, और कौन से साल में आप मुंबई गए, एंड हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी इन मुंबई. दोस्त ऐसा था कि मैंने शुरुआत तो सूरत से, थिएटर या से आई किया नो. था. या और थिएटर करते 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 पता चला कि यार अभी ये स्टडी वडी तो खत्म हो गया, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. फैक्ट्री में भी कुछ मजा नहीं आ रहा था. उन दिनों एक 3 इडियट मूवी आई थी जो मुझे या बहुत पसंद थी. वो मूवी मैं बहुत बार देख चुका हूँ. उसमें आमिर खान ने एक डायलॉग बोला था कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है. सोच, अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू सिंगर बन जा, और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो आज वो लोग कहाँ होते. सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस जब ट्रू पाओगे. ट्रू. भाई ये डायलॉग को मैंने अपनी लाइफ में, देख रहे हो जिस इंटेंसिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, इस डायलॉग को मैंने अपनी लाइफ में कैसे जमा टिका के रख लिया होगा. भाई मैंने भाई मैंने ये चीज को मैंने अपनी लाइफ में इतना उतार लिया था ना, कि मुझे बस अभी वो एक ही चीज दिख रही थी. मेरा फोकस एकदम एकदम स्टेबल्ड हो गया था. मैं बिल्कुल फोकस्ड हो गया था. मुझे बस एक्टिंग ही करनी.
तो मैंने सूरत में एक्टिंग क्लासेस शुरू की है। अब जब आप किसी को सिखाते हो ना, तो आपको खुद को बहुत सारी चीजें यस। सीखनी पड़ती है, तब आप सिखा सकते हो। जैसे जी जी। आपको अगर किसी को डांस सिखाना है, आपको फोक सिखाना है, आपको कुछ भी सिखाना है, तो जी। आपको पहले वो चीज अपने आप में डालनी पड़ेगी, आपको या सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप दूसरों को सिखा सकते हो। नो डाउट एक्टिंग हमें आता था, एक्टिंग के हाँ बहुत सारे पहलू हमें पता थे, आपको भी डांस के बहुत सारे पहलू पता है, जी। लेकिन जो डीपली आपको किसी को सिखाना होता है ना, हाँ तभी क्योंकि जाके यार, उसका मजा जगदीश, आता है। हम ऐसे लोग हैं ना कि हम यार, पेमेंट आ गया ना, फीस ले लेना, चलना अभी कुछ भी करा लेंगे, ऐसे लोग नहीं है बिल्कुल भी हम। नहीं, बिल्कुल वी आर आप नॉट और फॉर मैं मनी। ऐसे यस लोग हैं, यस। हम आप और मैं ऐसे लोग हैं कि हमारे अंदर से जो चीज वो निकल रही है ना, वो उनके अंदर तक, वो बी जो है पहुंचनी ना उसके चाहिए अंदर या। जाना चाहिए। जी जी। सो मेरा भी यही इंटेंशन था, और मुझे आज खुशी है कि उस एक्टिंग क्लासेस में से कुछ करीबन 60-70 पीपल थे, जिसमें 10 साल की एज से लेके 65 ईयर्स की एज वाले लोग थे, लोग थे जिन्होंने हाँ। खुद अपना ड्रामा परफॉर्म किया, और उसमें से आज 8 से 10 लोग जो आज एक्टिंग फील्ड में काम कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी वो गुड। तो हो गया। उसके बाद फिर मैं मुंबई आया, यहाँ पर आया तो कुछ पता नहीं था कहाँ से शुरू करें। तो वो टिकट की लाइन में एक लड़का हीरो जैसा दिख रहा था, वो खड़ा था वहां पर, तो मैंने उसको पूछा कि भाई यहाँ पर एक्टिंग वैक्टिंग के लिए आया हूँ, तो कहाँ से शुरू करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। और थिएटर का बड़ा सा शील्ड मेरे पास था जो मैं करने के लिए यहाँ पर आया था। तो मैंने हम्म। पूछा उसको, तो बोलता है कि कहाँ से आए हो? बोले मैं सूरत से आया हूँ। कहाँ, कौन सी ट्रेन से आया? बोले फ्लाइंग आती है ना सुबह, उसमें आया। बोले शाम को वही फ्लाइंग वापस जाती है, जाओ वापस चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ओह वेरी स्ट्रेंज। इस चीज को मैंने ऊपर वाले का संकेत समझ के लिया, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया। मैंने बोला ये ऊपर वाला मुझे कुछ साइन दे रहा है, मुझे कुछ बताना चाहता है कि तेरा बेटा यहाँ कुछ नहीं हो रहा, मतलब तुम्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तू देख बहुत या उसके कैसे। बाद कुछ ना कुछ होगा। भाई तो एक ड्रामा की ऑफर आई, उमेश शुक्ला जो कि ओ माई गॉड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने मैं बीच में उनके साथ ही ड्रामा का। उमेश इज अ वेरी गुड यस। फ्रेंड ऑफ माइन। ओ रियली? यस He's my यस। very close friend. Yeah, Umesh, his ही इज अ wife. जैम ऑफ अ He's a पर्सन। gem of a guy. He's a gem of guy. भाई मेरा मुंबई में मेरे पास मोबाइल का कार्ड लेने के लिए प्रूफ नहीं था। उस बंदे ने बोला था कि भाई तू कोई चोर उचक्का थोड़ी है, मेरे मेरे मेरा लाइट बिल लेके जा और उससे तू अपना कार्ड ले। भाई उसने अपना लाइट बिल दिया था, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम पे उसने उनके साथ ड्रामा करते 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 पता चला कि यहाँ ऑडिशन भी होते हैं, तो वो देना शुरू किया। हम्म। सो पहले ही ऑडिशन में गया और वहां पर मुझे नॉट फिट बोला कि सर आपका आपका लुक नहीं जाता है। मैं निकल गया वहां से स्माइल देके, मैंने बोला सर आपका कुछ ईमेल आईडी हो तो दे दीजिए। स्माइल देके निकल गया। अपनी स्माइल बहुत कीमती होती है ना, वो तो हमेशा लेके चलते हैं अपने। राइट। तो एक बंदा पीछे से भागते हुए आया, सर 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 आइए सर, 1 मिनट बुला रहे हैं आपको। तो मैं गया, मैंने बोला क्या हो गया सर? बोले सर एक बार दे दीजिए ऑडिशन आप। मैंने दे दिया ऑडिशन अच्छे से, एकदम परफेक्शन के साथ। फिर मैंने उनको पूछा कि सर क्या हुआ है ऐसा कि आपने मुझे वापस बुलाया, मैं तो नॉट फिट था ना। तो बोले सर वैसे तो आपका लुक नहीं जा रहा है, बट सर आपकी स्माइल बड़ी अच्छी लग गई मुझे, तो मुझे लगा इनका ऑडिशन करना है। भाई तीसरे दिन उस बंदे का फोन आया, बोलता है मुझे कि सर आप सिलेक्ट हो चुके हैं इस एड के लिए, और वो बहुत बड़ी एड, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वाटर प्यूरिफायर प्योरिट का एड था, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। यस यस। सो भाई वो वहां से शुरू हुआ। आज 300 ऐड कर चुका हूँ, मूवीज काफी सारी की है, ओ माय गॉड, पीके, या बैंग बैंग, गब्बर, जुड़वा टू, रॉन्ग साइड राजू, स्पेशल ऑप्स, काफी सारी मूवीज, सीरियल्स काफी सारी की है। अभी नागिन 4 सीरियल कर रहा हूँ या। कलर्स पे, नागिन 5 के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सी। सो यही है जर्नी, यहाँ से शुरू हुई है। तो वेरी लोगों इंटरेस्टिंग के या। लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद, आप जैसे दोस्तों की दुआएं साथ हमेशा रहा और करता गया। बस तुम हमेशा, मैं जानता था जब भी मैं तुम्हें कुछ कुछ मेरा मेरा कुछ भी ऐड भेजता था, तुम्हारा हमेशा या तो ऐसे आ जाता था या ऐसे या। आ जाता था, या हमेशा इंस्पिरेशनल कुछ, वाओ हेतल यू आर डूइंग गुड। आई रियली अप्रिशिएट दैट। सी मैं मेरे बहुत दो क्लोज फ्रेंड है मेरे जो आज मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में। एक आप हो और फ्रेडी दारूवाला। यू नो फ्रेडी वेरी वेल। सो यस फ्रेडी कपूर। फ्रेडी और दोनों का कुछ ना कुछ होता है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो मेरे दोस्त आज वहां तक पहुंचे हैं। एंड मैंने आपको जैसे स्टोरी बताई थी कि 90s में सरोज खान वाज केम इन सूरत। एंड मेरा ओके। एक डांस शो में एज अ गेस्ट था, और मैम भी एज अ गेस्ट थी, मिले और बोला कि किसी ने बोला रियली? कि सर
Yeah, and the 90s, the peak time of मैम. So Wow. तब मैम ने बोला कि आपको तो कोई बॉलीवुड या कहीं पे होना चाहिए. तब मैंने मैम को बोला कि Really? मैम, या कि मैम, मैं आई एम नॉट हियर टू जस्ट फॉर अ मनी फ्रॉम माय आर्ट. एंड शी गिव Wow. मी अ ब्यूटीफुल हग. कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि जो सी टोल्ड कि ऐसे लोग. सरोज जी है, काफी कोरियोग्राफर है और बॉलीवुड के, जिन्होंने मुझे बोला कि आप बॉम्बे आ जाओ. और सबको मैंने यही दिया कि आई एम नॉट हियर ओनली फॉर मनी. How तो sweet. heart is How, my, I mean, my heart is uh, bleeding for just for art, just to spread art. Not even in Gujarat, not even in India, globally. That was my dream. And nowadays, how sweet. almost more than half of the world I have traveled for my art. How sweet, how sweet, how sweet, how sweet, यार. That is why, I told you ना कि यार ये है ना, हम लोगों के अंदर जो जो है ना, वो चीज हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं, बट वो जी. हम महसूस जरूर कर सकते हैं. जैसे हाँ. मैं जैसा हूँ, मेरे जैसा तू है, तो वो कनेक्ट करता है उस चीज कनेक्ट, को. यस यस. सो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए यही चीज काफी है. मेरे 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 कुछ दोस्त भी जुड़े हुए हैं. धारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जो भी जुड़ी हुई है. काफी सारे नानू करके मेरा रेगुलर, मेरा ब्रॉड पर आता रहता है. वो ही इज ऑल्सो गुड फ्रेंड नाउ. सो ओके. सब लोगों का बहुत स्वागत है गाइस. थैंक यू सो मच, आप लोग आए. जगदीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सूरत के मेरे दोस्तों में से वन ऑफ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. और मैं जब भी सूरत जाता हूँ गरबा खेलने के लिए, तब जगदीश को जरूर मिलता हूँ. कहीं ना कहीं से वेव तो हो ही जाता है. हो ही जाता बट है, हो ही जाता रियली है. रियली इंस्पिरेशनल यू आर. तुम यंग जनरेशन की इंस्पिरेशन हो. मुझे मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना है जगदीश. मुझे ये बताओ कि प्लीज प्लीज तुम्हारी प्लीज. तुम्हारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, मुझे ये बताओ थोड़ा. My journey started in 1986, Hetal. Okay. In 1986, there was a first Garba class I was started in Surat at Diwali Bagh Athwa Gate. And Oh, really? yeah, You and are the that one. I'm the one. I can say this is the first Garba class of Surat, which is playing in Navratri, not the stage Garba. Right, But the right, right. first commercially गरबा क्लास इन सूरत, वी कैन से. एंड एक बहुत बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर में फ्रंट लाइन आई थी कि अभी तो गरबा आर्ट को भी लोग कमर्शियली करने लगे. एंड yeah, and the 11th day, I mean, the whole Navratri is finished, and the last day, my interview was headlines on the first page. कि this guys has done a Garba global. ये Wow. लड़का है जो गरबा को कहां तक पहुंचा सकता है. जिस न्यूज़पेपर ने वो लाइन छापी थी, उसी न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पे ये लाइन छापी कि How sweet. એક્ઝેક્ટ મેં આપકો ગુજરાતી વર્ડ એમાં પ્રતિબિંબને પારખવા માટે ક્યારેય આઈનાની જરૂર નથી. આ હેડલાઇન હતી अरे એની. वाह, क्या बात है यार, क्या बात है. या तो ये कब से जगदीश, कब से हुआ ये? स्कूल के टाइम से ही तुम्हें लगा कि मुझे ये करना है? क्या क्या Yeah, it was my इंस्पिरेशन था? in 86 I was in school only. 11th standard or 12th standard mein I had started my Garba journey, and I was in early classes. I mean 7th 8th mein I just to see अपने मेघ मयूर के पास और दिव्य स्वप्ना और इंस्टाइल गरबा होता था, तो मैं जस्ट देखने जाता था. मेरे को लगता कि मुझे एनवलप में डाल के कोई 1 रुपया भले चाहे कुछ भी नहीं हो अंदर, लेकिन मुझे स्टेज पे हाँ. बोला कि दिस गाय इज अप्रिशिएट फॉर हिज आर्ट. इसके गरबा के लिए उसको हम ऊपर बुला रहे, बस मुझे वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. क्या बात है, क्या बात So है, that क्या बात stuck in my mind, and I had क्या. started this journey, and now you know everything what I am doing for this Indian art, this Indian folk music and dance, what we are doing globally मतलब nowadays. मतलब गरबा को मूल से उठा के रखने वाले आप लोग हो, राइट? Thank you. यस. आज पता चला. अभी 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 ये लोग अभी आपका कच्चा चिट्ठा मेरे सामने आ रहा है. मुझे पता ही नहीं था. मैं कब से सोच रहा था कि ये कौन है बंदे जिन्होंने गरबा शुरू किया था, और क्या फीलिंग रहती है उस टाइम पे भाई. गरबा And it, खेलना मतलब एक yeah, एक एक आर्ट मानी जाती है. पता है, हमारे शूटिंग लाइन में जब
गुजराती फैमिलीज होती है उसमें किसी को गरबा नहीं आता है, और जब मैं गरबा करता हूँ तो लोग मुझे देखते रह जाते हैं, Yes, बिकॉज I know हमारे you're तो playing खून very में gracefully. और आप दिल से खेलते हो, मुझे मालूम है। हाउ स्वीट। खुल खुल के खेलता हूँ मैं खुल के खुल के खेलते हो आप। खेलता हूँ, मुझे मजा आता है बस। That's what your plus point है, तल कि आप जो सो करते अभी हो दिल से नागिन करते हो। दिल से करता So हूँ, जो नागिन में भी। 87 से I had started playing a competition. Continuous ओके, 7 years I got champion of championship of South Gujarat. वाओ, क्या बात, क्या बात। In 1994, I can say maestros and divas and masters of Garba, Dhiru Bhai, then Chetna Ben Pade, Nainakshi Ben Vaidya, Mahashweta Ben Chauhan, Bansri Ben Trivedi, they came to me and they said कि जगदीश હવે અમે તને આટલા વર્ષોથી આપીએ છીએ, કોઈક નવાને ચાન્સ નહીં આપવો જોઈએ. મેં કીધું યસ મેમ, પણ હું શું કરીશ કાલથી? वाओ, गुजराती में मैम ने व्हाट पूछू नेक्स्ट। व्हाट, मैं क्या करूंगा कल से? तो मैम ने कहा कि कल से आप मेरे साथ कागज और पेन लेके जूरी में. So that the वाओ, day 1995 to till today I am as a jury for dancing and stage and art and fashion show and acting classes, many things, all kind of art. it's all God's grace also, It's it's all your God. It's hard all God. work also, Yeah. it's really really appreciated, you know, because ऐसा होता है कई बार कि लोग अपना लक्ष्य हाँ, पकड़ते हैं फिर exactly. छोड़ देते हैं, आगे बढ़ना समझ में नहीं आता है कैसे आगे बढ़े। बट ये है ना, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है जो हमारे साथ रहता है और हमें स्टेप बाय Yes. स्टेप अप लेके जाता है, यू नो। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने साल एड में इतने साल दूंगा तो मेरे मैं 300 जितनी ऐड कर लूंगा। पता है एक बार 300 क्या ऐड हुआ था? करना मतलब it is a milestone of a lifetime, dear. Nobody मुझे think about 300 ऐड हेतल ने किया है. Oh my God, I love you for that. लव यू यार, लव यू। मुझे विकी कौशल, जो कि मेरा, मुझे नहीं पता था, एक बार हम मुझे मिला था कुछ फंक्शन में था हम लोग के साथ में। तो मैं ऐसे बगल में खड़ा हुआ था और विकी कौशल आया, सब मिले उनसे, हाय विकी भाई कैसे हो कैसे। मैं साइड में खड़ा था, वो मुझे देख रहा था। धीरे से सबसे मिलने के बाद मेरा हाथ पकड़ के मुझे बीच में लेके आया, बोले भाई आप लोग को पता है ये हेतल है और ये बंदा इतनी ऐड करता है, बोले सलाम है इसको। मैंने बोला भाई तुमने कब देखा मुझे? अरे सर मैं तो आपको जब से ऑडिशन देना सीखा ना, मैं आप ही से सीखा है। और जब ऑडिशन देने जाता था ना तो आपके ऑडिशन में 4-5 लोग उठ के चले जाते थे जैसे ही आप आते थे। क्या बात है, पूछने क्या बात है. पूछने पर बोलते थे अभी हेतल आ गया ना, अभी हमारा नहीं होगा बोलते। ये विकी कौशल ने बोला है सबके सामने। क्या बात है, क्या बात है. नो डाउट वो बंदा भी बड़ा बड़ा डाउन टू अर्थ है, Yeah, he बहुत is ही a very अच्छा nice है, guy. दोस्ती I met मानता है, इज him. अ नाइस। I met him twice. Yeah. Uh, यस, रूपल मैम ज्वाइन किया है. हेतल मैं आपको रूपल मैम के बारे में. शी इज अ फैशनिस्टा, शी इज अ सोशलाइट, शी इज अ मैं जानता हूँ talented रूपल को। diva. हाय रूपल। Yeah, she is joining us. हाय रूपल। यस, हाउ स्वीट ऑफ यू। Ritu Rathi is joining us. Many people are there to encourage हाउ us. स्वीट। Yeah, गाइस so जितने भी sweet लोग people यहाँ पर around us. हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग सब अपना टाइम निकाल के आए, यू नो। आज सबसे बड़ी चीज क्या है जगदीश भाई? भाई आज सबसे बड़ी चीज है टाइम। Yeah, time. और जो जब लोग लोग हमारे लिए हमारे निकाल रहे हैं. जो लोग हमारे लिए निकाल रहे हैं इस वक्त, आई एम सो मच ग्रेटफुल। आई एम बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई एम सो मच ग्रेटफुल Yeah, दैट we यू are very पीपल lucky to केम have हियर। them. And Yeah. yes, absolutely, we are very much lucky that having you people. Moksha, wow, Moksha is also there. Thank you so much, guys, for your love, for your support. Rupal, thank you so much. मैं रूपल को एक ही बार मिला था, लेकिन वो उसका उसका ऑरा, उसका Yeah, चार्म very इतना था ना positive कि aura. Yes, yes, yes. मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाया। सो शी वॉज माई फ्रेंड। गाइज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, प्लीज अगर मुझे फॉलो नहीं किया है कर दीजिए, जगदीश भाई को फॉलो नहीं किया प्लीज कर दीजिए आप लोग। ये जगदीश भाई ऐसे है ना कि वो मतलब इंस्पिरेशनल गाय है, तो उनके पास से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। सो इट्स See, रियली वंडरफुल यार। life is a learning process every moment. हम भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखते एब्सोल्युटली, रहते हैं. तभी तभी एब्सोल्युटली। जाके ये अब कभी मेरे को मेरे को मेरे से रहा नहीं जा रहा है. मैं कुछ बोलना चाहता हूँ हेतल, कि लोग मेरे को प्लीज। पूछते कि कौन सी एज पे आप मॉडल बने. आपको बताता हूँ कि एज एज ऑफ 50 आई गॉट 3 एड. तीन एंडोर्समेंट मैंने 50 साल की इस उम्र में
अब मिले मेरे को, मतलब तीन। वाह। तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो सही, मैं कभी करना नहीं चाहता लेकिन लोग, और यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने अभी एक स्वैग करके मेंस वेयर क्लोथिंग है, सूरत का बहुत अच्छा स्टूडियो है, उनका मैंने एंडोर्समेंट किया, तो उन्होंने सिर्फ 60 डेज में उसका सेल 20% बढ़ गया है तल। हाउ स्वीट यार, बोले सर वेरी गुड। आपकी वजह से तो मैं जंप करने लगा। मैं बोला दैट इज ग्रेस ऑफ गॉड, इट इज, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, जो कर रहा है यस यस, कोई है ऊपर जो कर रहा है, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, बट तो उसके बाद तो करेक्ट। स्टिल इट्स ऑन, नाउ इट्स ऑन। इट्स गोइंग ऑन, वाह वेरी गुड। नाउ क्योंकि इट्स एक ऑन। बी, आपने एक बी डाला है ना जमीन या में। या देखो ना कैसा होता है ना कि आप एक गेहूं का दाना आप डालोगे जमीन में, वो 1000 गुना होके कुदरत हमें देती है। राइट। ठीक उसी तरह आप यूनिवर्स में जो भी डालोगे ना 1000 गुना होके आएगा। आप अच्छाई डाल रहे हो तो वो 1000 गुना होके आपके पास आ रही है। आप अगर ट्रू किसी का बुरा ट्रू। चाहते हो तो वो 1000 गुना होके आपके पास आएगा। सही बात है, सही बात। अ, सुनीता का, जी को, सुनीता जी कुछ बोलना चाहती है। वो बोल रही है कि हेतल सर यू आर सुपर टैलेंटेड एंड क्रिएटिव, हेड्स ऑफ टू योर टैलेंट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्लीज अपना रोमिल, प्यार थैंक ऐसे यू ही बनाए राजेश्री, रखें। बस आप लोगों का प्यार बना रहे हमारे लिए, प्लीज हम दोनों प्लीज के लिए प्लीज बना वही। रहे बस। हाउ स्वीट। दीनू जगदीश इज अ खन्ना स्टार इज मेकर, यस यू आर राइट। जगदीश इज अ स्टार मेकर, यस यू आर थैंक यू राइट। थैंक यू थैंक यू। बट मैं भी चाहता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी चाहा भी था, बट मुझे नहीं मालूम है कब वो पूरा होगा, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि बहुत जल्दी पूरा होगा। मेरा एक सपना था कि मैं जगदीश के साथ कभी कुछ काम करूं। सो लेट्स पक्का, लेट्स होप फॉर विल डू टुगेदर, डेफिनेटली यस। दैट। रोमिल कह रहा है जैम ऑफ द मैन बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच बडी। और जल्दी से आप लोग थैंक हमें यू। साथ में देखेंगे भी, क्योंकि हाय अस्मी, वेलकम अस्मी। आई ऑलवेज लव वॉचिंग, रूपल क्या बोल रही है? आई ऑलवेज लव वॉचिंग योर एड्स हेतल। हाउ स्वीट या ऑफ यू रूपल, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच, लव यू। थैंक यू। तो मैं यही बोल रहा था जगदीश की, जल्दी से कुछ ऐसा करो कि मैं वहां आऊं और सूरत को पक्का। एंडोर्स करूं यार। मैं चाहता हूं कि मैं यस सूरत को यस। आगे लेके जाना चाहता हूं यार। कुछ एंड प्लान कर, प्लीज कुछ प्लान है प्लीज ही प्लीज दिमाग में, और कुछ हम लोग सोच भी रहे हैं, तो डेफिनेटली प्लीज आई आई विल लेट यू नो। पर उससे पहले प्लीज। काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि आपकी फैमिली के साथ आप कैसे बैलेंस करते हो हेतल, बॉम्बे में रह के सूरत की फैमिली, एंड फैमिली कैसे सपोर्ट आपको करती है, आप कैसे फैमिली को सपोर्ट करते हो। तीन चार लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में भी पूछा है ये सवाल, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फैमिली रोक रही है कुछ करने के लिए, फैमिली का क्या होगा, वो लोग यस। कैसे करेंगे। सो हाउ कैन यू आर बैलेंस दिस ऑल थिंग्स। उसके बाद आप मुझे पूछो, मैं आपको ये पहले पूछ रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा भी ऐसा ही है कुछ तो। मुझे पता है, मैं वही पूछने वाला था और तुमने मुझे पूछ लिया। नहीं बट ये दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, या इस दिस इज अ सबकी कॉमन लाइफ में क्वेश्चन, आता है। काफी काफी लोग सबकी जानना लाइफ चाहते का, हैं। सबकी लाइफ। थैंक यू सो मच जेनिता, थैंक यू सो मच। हैव फन टू सी योर एड्स हेतल अंकल, थैंक यू सो मच। सो या ऐसा होता है गाइस कि मैं आपको बहुत ही फ्रैंकली एडवाइस देता हूँ। मैं यहाँ पर आया था तो मेरी फैमिली भी रेडी नहीं, या बट क्योंकि मैं अपना एक बेस बना चुका था, 10 साल में थिएटर कर चुका था, मेरा एक बेस था। सूरत में लोग मुझे जानते थे, मेरे नाम से एक्ट लिखा जाता था, मेरे नाम से रोल लिखे जाते थे, बोलते थे कि ये रोल हेतल करेगा, लाइक हेतल ही करेगा, दैट। यस। इतना नाम हमने वहां पर बना लिया था। कुछ सीरियल्स भी की थी दूरदर्शन पे उस टाइम पे, जी। मैंने कुछ बहुत सारे एक्ट्स भी किए थे। बट गाइज ऐसा है कि ये फैमिली फैक्टर है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कभी नहीं। You have to be with them, you have to co-opt with them, because family is your life, your strength। अगर आपकी यस। फैमिली में एक भी बंदा अगर नाखुश है ना आपसे, तो आप काम नहीं कर, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी फैक्ट्री जो भी थी, वहां पर जो भी काम था जो मैं कर रहा था, उसको स्टेबल्ड किया। मैंने उसको रेंट पे कर दिया, उसको स्टेबल कर लिया, मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को, मैंने ये सोचा कि अभी मुझे मुंबई जाना चाहिए। तो मुंबई जाने के बाद मैं क्या करूंगा ये मुझे पता था, बट मेरी फैमिली को नहीं पता। सो मैंने उनको साथ में बिठाया, उनको सामने बिठाया, मैंने उनको बोला कि देखिए मैं अपनी लाइफ में 50 साल बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं रिग्रेट करूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में एक चांस मेरे पास था वो मैंने दिया नहीं। दिया नहीं।
सो मैं उस चीज को जीना चाहता हूं। मुझे सिर्फ एक साल दे दो मुझे। एक साल में अगर अगर मैंने कुछ भी नहीं किया ना काम, अगर मेरा काम तो नहीं आई चल विल रहा तो कम बैक टू माई वर्क, या मैं ट्रू। खुद वापस आ जाऊंगा। जी जी। और ये उनको कन्विंसिंग लगा। ओके, ट्रू, फाइन, गुड, वेरी गुड। सो इसमें पेरेंट्स भी कन्विंस होते हैं यार, इसमें या होते हैं। ऑफ आप कोर्स, यस आपको यस यस। कन्विंसिंग पावर, जब आपका आपके पेरेंट्स को आप आपके अंदर इतनी कन्विंसिंग पावर नहीं है, आपके पेरेंट्स आपसे कन्विंस नहीं हो पा रहे, तो आप एक्ट कैसे करोगे? हाँ, और दुनिया को लोग कैसे कैसे कन्विंस आप करोगे? दुनिया को कैसे कन्विंस करोगे? तो ट्रू। सबसे पहला स्टेप ही वही था मेरे लिए, कि फैमिली को आपको अपने आप लेके चैरिटी चलना स्टार्ट है। फ्रॉम फैमिली। सो ऐसा ही हुआ, और वहां से शुरू किया मैंने। और शुरू करते करते वहां पर से फैमिली का सपोर्ट मिलने लगा। और सब जैसे यहाँ पर आया, काम शुरू हो गया। सो फैमिली को लगा नहीं यार, काम हो रहा है ना, तो फिर ठीक है, लड़का काम करने कर दो। रहा है, हाँ। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर। फैमिली का सपोर्ट भी मिला, फिर मैं करता गया, काम करता गया। बहुत स्ट्रगल भी थी भाई, ऐसा नहीं था कि बहुत या इजी था। विदाउट स्ट्रगल यू वॉन्ट गेट एनीथिंग इन लाइफ। मैं सुबह सुबह 9:30 10 बजे घर से अपनी वही बैग लेके, उसमें पानी का बोतल, थोड़ा नाश्ता खाना, कुछ कपड़े ऐसा सब लेके कुछ निकल डाल जाता के था मैं। अंदर निकल जाते थे। हाँ, ट्रू। मुंबई में सुबह ही सुबह निकल जाता, और बस में जाता था। मैंने कभी फालतू पैसे वेस्ट नहीं किए, मैंने रिक्शा में कभी नहीं गया। मैं बस का पास निकलवा लाया था, तो बस के पास में लेके मैं हर जगह पे जाता था। दिन की लगभग 12 से 14 जगहों पे जाता था, जिसमें 4 से 5 जगहों पे मेरा ऑडिशन होता था। और उसमें से एक ऑडिशन में मैं शॉर्ट लिस्ट, और उसी शॉर्ट लिस्ट में मैं फाइनल होता था। ये चलो दस ग्रेट। को रात को 10 बजे तक ये प्रोसीजर मेरा रहता था। रात को 10 बजे खाना खाने के बाद फिर मैं सब ईमेल आईडी जो सबके पास से लाया था उसको ईमेल करता था। मतलब 11 12 बजे तक मेरा पूरा पूरा माइंड, मतलब 4 5 साल तो मैंने ऐसे दिए ना फोकस, उसमें, या कि एकदम फोकस। फोकस होके। सो गाइज, आप भी ऐसे कन्विंस करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई मना नहीं करेगा आपको। कोई मना नहीं करेगा, कोई भी ऐसा पेरेंट मना डेडिकेशन नहीं चाहिए, करेगा। ऐसा जज्बा चाहिए काम करने का। वो यस जज्बा होगा तो यस ही भाई, आप काम इतना कर पाओगे। यस। इतना जज्बा होगा तो ही आप कर भी पाओगे, नहीं तो आपका जाना ही बेकार है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हेतल भाई, आपका रॉन्ग साइड राजू वाला रोल मुझे बहुत रोल अच्छा बहुत लगा। मुझे पसंद है। हितेन, थैंक थैंक यू यू। सो मच। हितेन ज्वाइन किया है। हितेन इज अ वेरी गुड थैंक यू। आर्टिस्ट, ही इज अ जेम ऑफ अ गरबा प्लेयर। थैंक यू हितेश, Oh, हितेन फॉर hi ज्वाइनिंग Ethan. यस। Thank you so much. Thank you guys. Best फ्रॉम relationship. क्या लिखा है ये? रिलेशन मेंटेन करना है तो जगदीश से सीखे। थैंक यू रोमिल, इट्स योर रिफ्लेक्शन वर्ड्स How विथ यू sweet. सर। How sweet. थैंक यू। यही थैंक सीखा है यू। मैंने उससे, तभी वो मेरा दोस्त है। थैंक यू Yes, वत्सल। absolutely right. वत्सल कापड़े, ही इज अ वेरी गुड मॉडल। अभी मेरी स्टूडेंट मेरी ऑडिशन में ही पास हुआ था, और अभी वो काफी अच्छा काम कर रहा है हेतल। तो अभी हमें जगदीश सर, मुझे भी ऑडिशन देना पड़ेगा आपके इसमें एंटर होने के लिए। ऑडिशन नहीं, आप तो दिल में ऑडिशन दे चुके हो, आपको कहाँ स्क्रीन पे ऑडिशन देने की जरूरत है। आई लव यू। थैंक यू वेरी मच। अरे जगदीश भाई, मुझे एक बात बताना, क्योंकि ये मेरा खुद का भी पर्सनल क्वेश्चन था, प्लीज और प्लीज। काफी सूरत वासियों की भी क्वेश्चन होंगे ये, कि आप जब इतने साल से जज बन रहे हो, जी इतने जी। साल से आपको बुला रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये मैं एक ही बॉक्स में फिट होता चला जा रहा हूँ? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं मुझे उससे ऊपर भी उठ के जाना है, कहीं और मेरा लक्ष्य है? ऐसा कुछ लगा जैसे मेरा लक्ष्य है मुझे हॉलीवुड में काम करना है, तो वो मुझे जी खींचता रहता है, हर बार मुझे वहां जाने के लिए प्रेरित करता है, मुझे बोलता है जी। कि नहीं, मुझे वहां पहुंचना है। तो रास्ते में जो जो आता है वो सब मैं पार करता है। ऐसा कभी आपको हुआ है क्या? मेरे को हुआ, लेकिन आप सिर्फ मेरे गरबा के एस्पेक्ट्स को ज्यादा जानते हो हेतल। मैंने करेक्ट। स्टडी किया है। आई एम टैक्सेशन लॉयर। I completed taxation law. I'm a रियली? university topper of company law. एम जी, मुझे ये पता ही नहीं था। ओ माय गॉड। So मैंने भाई तुम्हारी उसमें कितनी, भाई क्या मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो आप तो भाई। और क्या क्या है बताते जाओ भाई, सब कुछ। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस कभी नहीं की, मैंने बिजनेस किया। बिजनेस है मेरा केटरिंग का। Oh, I'm into wedding this is the wedding fourth one, I planning. think so. Yeah, wedding caterings, wedding planning, and second hobby part is I was a teacher of art of living, as a yoga teacher, as a meditation teacher.
So and ये कह के आपने मुझे भाई खरीद लिया भाई, बिकॉज मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, I know you are. So एंड we are यू नो Guru दैट brothers वेरी also. We are Guru वेल। Bhais. यस। We are Guru Bhais as well. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि डांस में लोगों रह कभी जाते हैं जस्ट स्टेज पे। आई नो, मुझे पता है वो तो। सो लोग, जैसे आपने बोला कि आपको कभी वहां जाने की इच्छा नहीं हुई, मेरी लोग इनाम या स्टेज पे परफॉर्म करके उसका बेस्ट परफॉर्मेंस है उस तक ही वो सीमित थे, लेकिन मुझे हमारी ये आर्ट को वर्ल्ड वाइड लेके जाना था। ओके और ओके। और मैं 20 साल से वो उसको एवरी डे सी, आप जानते हो कि हेतल मैं पेरिस जाता हूं तो पेरिस का मेयर मेरे लिए मीटिंग रखता है, मेरे लिए कॉन्फ्रेंस रखता है, मेरे लिए पार्टी रखता है। ओह माय मैं गॉड। साउथ इटली में वेनिस गया तो वेनिस, आई वाज एन इंटरनेशनल जूरी फॉर मिस इटली 2009, so there was a party for me, there was a, वाओ and I said I'm not here for me, I'm here for Indian art. He snatched वाओ। me here. He pulled me here. That's why I'm here. I'm करेक्ट। not for to just show myself what I am talented. No, I'm here to show Indian art, what the Indian rituals, what the Indian sanskara is. वाह That's वाह। what my motto ग्रेट। in life, and I still I'm learning and still I'm doing it. वाह यार वाह। इंडिया के बारे में सोचना तो मतलब बहुत बड़ी बात हो। Thank you, वंडरफुल। Nirali ma'am. Nirali ma'am is an amazing artist. She's a very graceful choreographer and a beautiful artist. Nirali Nayak ma'am जो ज्वाइन किया, और उन्होंने बताओ तो रोटरी के उनके हस्बैंड प्रेसिडेंट, उन्होंने जो काम किया है हेतल, आज तक की रोटरी की हिस्ट्री में नहीं किया वो काम उन्होंने कर दिखाया है। निराली पूरे मैम एक आपका कपल बहुत ने, स्वागत निराली है। मैम और मनीष सर ने, या दे आर प्लीज वंडरफुल गाइज, पीपल। मैं अभी ब्रॉड पे वापस बोल रहा हूँ, जो नए लोग आए हैं, जगदीश भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा नाम जगदीश, हेतल पटवाल है। अगर कोई नहीं जानता है तो थैंक यू प्लीज सो मच। हमें फॉलो कर दीजिए एक दूसरे को, हमें हमें आपके साथ रहने का मौका दीजिए। हम लोग ये ब्रॉड पे इसीलिए आते हैं ताकि हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं, जो फैंस लोग हैं, जो हमें चाहते हैं, वो हमें देख पाए, हमसे रूबरू हो पाए, हमारी लाइफस्टाइल को देखे, जिससे वो कुछ इंस्पिरेशन जी, उनको मिले। इसी वजह से हम लोग, बाकी मैं जगदीश से फोन पे भी बात कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ डेफिनेटली। कि हम सब लोग जो जो इस चीज को लेके हम जन्मे हैं, जो हम इस चीज को लेके आज कर रहे हैं काम, उसको जी आप तक पहुंचाएं। जी, करेक्ट हाँ, जगदीश? यस यस, काफी लोगों को एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा हेतल आपसे कि सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए इंसान के अंदर। सक्सेसफुल बनने के लिए मेरे हिसाब से तो 3 चीजें होनी चाहिए। जी, प्योरिटी ऑफ माइंड, यस, आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है। यस, सॉरी, नॉट नॉट प्योरिटी, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड, या प्योरिटी ऑफ हार्ट, एंड डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस यस, इन एक्शन। डेफिनेटली यस, ट्रूली वंडरफुल। क्लैरिटी ऑफ माइंड, या प्योरिटी ऑफ हार्ट, स्पॉन्टेनियस इन एक्शन। आपका या माइंड क्लियर है कि आपको एक्टिंग में जाना है, सो वो क्लैरिटी रखनी पड़ेगी पहले तो। यस, कम व्हाट में, क्योंकि क्योंकि कुछ भी हो जाए। जब आप ना, जब आप, है ना, ऐसा होता है, ये माइंड का गेम ऐसा होता है ना, कई बार बदल जाता है। जैसे मैंने ना हमेशा ये एक बात नोटिस की है, कमिटमेंट इज ऑलवेज नीडेड व्हेन देयर इज नो लव। ट्रूली, जगदीश भाई, यस यस, कमिटमेंट इज ऑलवेज नीडेड नीडेड, व्हेन देयर इज नो लव। आपको गिटार सीखना है, आपको डांस सीखना है, ओ वाओ, जगदीश सर के पास डांस सीखेंगे, वाओ, जगदीश सर डांस सिखा रहे, वो डांस कर भी रहा है। जगदीश सर ने बोला कि अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, अभी 1 महीना जगदीश सर ने सिखा दिया, अभी आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ओके, घर पे प्रैक्टिस शुरू किया, हर रोज 2 घंटा, फिर वो 2 घंटे में से धीरे धीरे 1 घंटा होगा, फिर आधे घंटे पे आएंगे, फिर बोलेंगे आज 10 मिनट ही टाइम है, चलो कर लेता हूँ, फिर बोलेंगे अरे आज नहीं करता हूँ, कल कर लेता हूँ, परसों कर लेता हूँ, अरे मंडे से कर लेता हूँ ना, वो मंडे कभी नहीं आता है भाई। सीरियसली, इसके लिए कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। पहले पहले तो यस, बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्यार था ना, हाँ, आई लव डांसिंग, मैं ट्रू, डांस को प्यार करता हूँ, आई लव डूइंग डांस, बट वो पहले पहले बहुत अच्छा लगा, बट जब उसकी प्रैक्टिस करने का टाइम आया तब क्या हुआ, कमिटमेंट खत्म हो गया। तब कमिटमेंट की जरूरत है, जब वो प्यार खत्म होने लगता है,
सो मैंने भी यहाँ पर ऑडिशन प्रोसेस बहुत गंदा प्रोसेस है भाई। आप लोग करने जाओगे तो 10 दिन में 10 या 5 दिन में परेशान होकर घर पे बैठ जाओगे। बहुत गंदा प्रोसीजर है। बहुत गंदा, बहुत गंदा। यस, लेकिन आई वो अंडरस्टैंड। कमिटमेंट, मैंने सुना हुआ है, कमिटमेंट काफी चाहिए फ्रेंड्स आपका से सुना हुआ है, बॉस। काफी लोगों ने बताया हुआ है। ट्रूली ट्रूली। सो हमेशा अगर मेरी बात अगर आपके माइंड में उतरती है ना, तो वापस मैं बता रहा हूँ, क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पॉन्टेनियस इन एक्शन। स्पॉन्टेनियस इन आपका माइंड क्लियर है ना, आपका हार्ट प्योर है ना, तो एक्शन में लाना शुरू कर दीजिए। कई बार हम ट्रूली। सब कुछ हमारे पास होता है, हम एक्शन में लाना ही शुरू नहीं कर पाते, हम उसको एक्शन में ले ही नहीं पाते। जगदीश सर के पास डांस क्लास शुरू तो कर दिया, लेकिन वो एक्शन में लाना बहुत जरूरी होता है, वो हो ही नहीं पाता। वो यस, ट्रूली ट्रूली। इजंट इट? Very इजंट इट? perfect, very perfect, very much encouraging and very much understanding lines what you had taught for the who want this answer. They are already there. और वाह, जेतन जी कह रहे पायल हैं ने बहुत कि अच्छा लिखा है यार। क्या जगदीश लिखा सर है? का लक्ष्य लोगों को आगे बढ़ाना है, उनको ऊपर लेके जाना है। आज आपसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी वजह से कहीं ना कहीं पहुंचे हैं, वो लोगों को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए वो सबसे ऊपर है। और जो Thank you, सबसे ऊपर है वही सुपरस्टार है भाई। thank you so much, thank you so much, Payal. Payal ये is a गारंटी है। she's my student, she's my assistant. I have a करेक्ट, more करेक्ट। than भाई मैंने 10 12 मुझे assistants. She's my one of the favorite assistant, and we can say हम स्पंदन की माधुरी दीक्षित है वो। यार, यार पायल, तुम्हारा नेट। शी इज अमेजिंग आर्टिस्ट। हेतल, हेतल अगर पायल स्टेज पे डांस कर रही हो ना, तो हमारी आंखें उस पे से हटेगी नहीं। अच्छा, पायल, हाउ इतनी स्वीट ऑफ यू। ब्यूटीफुल आर्टिस्ट है। जेतल ने लिखा है जगदीश सर इज अ एनर्जी बूस्टर, जगदीश इज अ इंस्पिरेशन। थैंक यू निराली मैम, you are an inspiration as well. Thank you Payal, thank you Divya, thank you थैंक यू। Hiten, thank you Jagruti. Many people are saying thank you so much. Your love is behind us. That's why me and Hetal are doing these all things because of you थैंक people. यू। Yes, thank you so much all of थैंक you. यू। Thank you. थैंक यू Yes, गाइस, इट्स रियली, thank you. पायल, Yes, रियली yes. नाइस मीटिंग यू गाइस। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज हमें फॉलो करते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, ताकि हम लोग आप लोग के साथ जुड़े रहें और ऐसे इजीली आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकें। मुझे एक बात और बताओ कि ये सब तो तुम कर ही लेते हो, जैसे अभी ये तो काम हो गया ना कि आपको सर हमारे वहाँ जज बन के आना, ये काम हो गया। सो ऐसा भी कुछ है कि आपको, आपकी कुछ हॉबी है कि मुझे मुझे ये बहुत पसंद है, अपने लिए Yeah. कुछ टाइम निकाल पाते हो? क्या है कुछ? या मैं बहुत मेरा मेरा हॉबी सबसे पहले म्यूजिक एंड डांस तो ऑलरेडी मेरे काम के साथ मुझे मिल रहा है। जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें से मिल जाता है। और मेरा दूसरा एक बहुत अच्छा हॉबी, आई एम अ फूडी गाय। आई वांट टू ट्राई मेनी काइंड ऑफ फूड्स। तो मैं कुकिंग का रियली? बिजनेस करता हूँ, तो टेस्ट करना भी अच्छा लगता है, खाना भी बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मेरा हॉबी था, मेरा गोल था कि वर्ल्ड वाइड इंडियन आर्ट को प्रमोट करूं। और मेरा एक हाइड हॉबी है जो आई एम अ सोलो ट्रैवल। आई लव सोलो ट्रैवल। अच्छा। हाँ, मैं जितनी बार हेतल जाता हूँ मेरी अब्रॉड के प्रोग्राम्स, और मोर देन आई कैन से 70 और 80 कंट्रीज आई हैव रोम अराउंड इन माय लिस्ट। वाह, और मैं कहीं क्या जाता हूँ तो मेरे कहीं काम के लिए, कहीं घूमने के लिए, कहीं फैमिली के लिए, कहीं बिजनेस के लिए, तो वो खत्म होने के बाद एक वीक में मेरा लेता हूँ सोलो ट्रैवलिंग का। मेनी टाइम्स आई हैव डन दिस। क्या बात है यार। और कोई मुझे पूछता है कि आपकी फेवरेट प्लेसेस क्या है, तो मेरी तो ऐसी प्लेसेस है कि कितने लोगों को वो प्लेस के नाम भी नहीं मालूम होगा। आई मीन इतनी इंटीरियर प्लेसेस है। और मेरा हिस्ट्री का प्लेस अलग है, मेरा सी शोर अलग है, मेरा टाउन की चॉइस मेरी अलग है। मुझे रिटायरमेंट कहाँ करना है, तो मेरा मोब्ला करके एक माउंट ब्लैंक इज अ बॉर्डर ऑफ साउथ फ्रांस, इटली एंड स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पे एक टाउन है छोटा सा, मोब्ला, जिसे मॉन्ट ब्लांक की पेन वगैरह जिसका अमिताभ बच्चन ने ब्रांडिंग भी किया हुआ है, अमित यस, जी ने। यस, तो यस, यस, वो यस। मेरी फेवरेट प्लेस है कि अगर मुझे कहीं कोई कहे कि आपको रिटायरमेंट लाइफ कहाँ जाना है, तो मैं मॉन्ट ब्लांक जाने के रहना चाहूंगा। या अगर बहुत मुझे बड़े सिटी में रहना है तो मैं वैंकूवर कनाडा का अप पे है, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सोलो ट्रैवलिंग और ऐसी सब बहुत हाइड हॉबीज है। बट ये हॉबीज कई कई बार डिस्कस भी करते, लोगों को लगता है कि ही इज डूइंग शो ऑफ, या इतनी जगह जाके आया है
तो ये सब बातें करता है। मुझे इंडिया में भी ऐसी प्लेसेस है मेरी जहां मैं जाके रहना चाहूंगा। ओ, जैसे हेली हेली कह हाँ रही है कि लेकिन आप बहुत रेयर जाते होंगे क्योंकि आपकी तो लाइफ ही आपके प्रोफेशनल और फ्रेंड्स है। वाह, क्या बात है, फिर भी क्या मैं बात मेरे है। लिए टाइम निकाल लेता हूँ हेली। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। थैंक यू सो मच। वेरी गुड गाइस, रियली तो नाइस मीटिंग यू गाइस। आप लोग बेस्ट। बहुत अच्छे हो और इतनी अच्छी ऑडियंस होती है ना तो हमें भी बहुत मजा आता है। पता है, हमें लगता है कि वी आर विद आवर फ्रेंड्स एंड जब रिस्पॉन्स सामने से अच्छा मिलता है तो लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बात की जाए, या इंस्पिरेशनल होते हैं और ऐसे ही लोग जुड़े हैं। देखो ना, सब सब हाँ, इंस्पिरेशनल लोग जुड़े हैं, जिनको सब इंस्पिरेशन सब चाहिए वो सब। जुड़े। बाकी सारे घर पे बैठ के खाना खा के सो भी जाएंगे या कहीं घूम रहे होंगे, उधर जाके देख रहे होंगे, कहीं वो देख रहे होंगे, कहीं सब अलग अलग जगह पे। लेकिन इंस्पिरेशनल चीजों को देखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज भी है क्योंकि अच्छी चीजों को फैलने में टाइम लगता है, बुरी चीजों में को फैलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है भाई। यहाँ पर दूध दूध बेचारा वो घर पे आके देने जाता है लेकिन दारू की लाइन लगती है। सही है। सो जेनिस ने ज्वाइन स्ट्रेंज। किया है, नाइसल ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेली, थैंक यू थैंक यू गाइस, वंस अगेन। रियली। और लाइक, मुझे मुझे एक दो लोगों ने ये भी पूछा था कि आपका अमित जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओ, मैं जानता था ये सवाल तो कोई ना कोई पूछेगा ही। कोई ना कोई पूछेगा ही पूछेगा। अब यहाँ पे भी आगे ग्रेट। स्क्रॉल हुआ है वो क्वेश्चन कि मेरे लिए तो ऐसा समझ लीजिए कि वो मेरे मेंटर है क्योंकि मैं पहले से ही उनको बहुत मानता हूँ जी, और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस तो अभी क्या बताऊं यार। वो खुद एक खजाना है। ही इज अल्टीमेट गाय। पहली या बार जब मैंने उनके साथ ऐड किया था, सो क्योंकि बहुत मैं घबराया हुआ था, इतने बड़े हाँ, स्टार के साथ काम करना मतलब, बट एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, इतना तो पता था। जी जी। वो अंदर बट से होता है कि मैं कर लूंगा। हाँ, हाँ, वो तो कीड़ा है तेरे पहले जब से वो ही है। सेट पे नहीं है How sweet। तो जब तक वो नहीं आया था ना तब तक तो मैं एकदम ऐसे करके बैठा हुआ था चौड़ा होके। जैसे ही वो सेट पे आए ना साला मैं भीगी बिल्ली बन गया। मुझे लगा मैं, वाओ व्हाट अ पर्सन। और वो बंदे ने आते ही डायरेक्टर ने मिलाया, सर ये हेतल है और आज हेतल ये फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं। ओके हाय हेतल, हाय हाउ आर यू करके हाथ मिलाया, मुझे ऐसे ऐसे पीठ पे ऐसे ऐसे किया। हाँ हेतल क्या कर रहे हो आप, वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड, वेरी गुड, चलो शुरू करते हैं। उन्होंने रिहर्सल करना शुरू किया और रिहर्सल करके हमने वापस, तो मैंने उनको पूछा कि सर एक बार और रिहर्सल कर सकते हैं क्या। सो उसने बोला कि एक बार क्यों, 10 बार करेंगे। डायरेक्टर इधर, अरे डायरेक्टर को बुलाया, उनको बिठाया, 10 बार मेरे साथ रिहर्सल किया। मैंने बोला सर 2-3 बार करेंगे तो भी हो जाएगा। नहीं नहीं 10 बार कर। वो बहुत कंफर्ट फील कराते हैं सब। हाँ, बहुत और कंफर्ट यही फील चीज कराते मैंने हैं। सीखी है। आ, हम ना जनरली लोगों को या तो हमसे ऊपर समझने लगते हैं तो भी हम्म, प्रॉब्लम होती है, हम जनरली लोगों को अपने से नीचे समझने लगते हैं ना तभी तो भी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती होती है। या है, तभी भी ट्रू, ईगो होता है। ट्रू। जब अपने अपने जैसे है जब समझने लग जाओ ना, तब वो काम ना प्रेयर बन जाता है। एब्सोल्युटली, सो एब्सोल्युटली। बच्चन साहब ने पहला काम यही किया और मैंने पहली चीज यही सीखी आज। और उसके बाद मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया ना सबको बहुत अच्छा फील हो, बोलते क्या मजा आता है आपके साथ काम करके। ऐसे बोलते राइट। बच्चन साहब के साथ काम करके ऐसे ही होता है। फिर तो दूसरी बार काम किया, मैंने उनको याद दिलाया कि सर मैंने ये ऐड की थी आपके साथ। फिर या तीसरी बार जब मैंने काम किया अभी उनके साथ, तो मैं तो इस बार तो ऐसा हुआ कि मैं सीधा इनके पैर पड़ गया, गले में लग गया, मैंने उनको हक कर लिया। सर कैसे हैं, तबीयत सब ठीक है ना सर आपकी, कैसा चल रहा है सब, घर पे सब मजे में है। हाँ हाँ सब ठीक है। नहीं उन्होंने नाम नहीं बोला। फिर मैंने मैंने पूछा कि सर हमने आगे एक ऐड किया था याद है आपको। हाँ हाँ हमने लक्सर नैनो क्लीनर का है, राइट, पुनी वाला, राइट। मेरी धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक गई भाई। उस बंदे ने जब पुनी वाला बोला ना मेरी धड़कन रुक गई। ट्रू, ट्रू। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है भाई। और फिर तो क्या, मतलब मैं बताऊं, मैं मतलब बहुत एक्साइटेड था और मैं अभी भी बहुत एक्साइटेड। मैं आप लोग को एक डायलॉग सुनाना चाहता हूं अगर आप लोग की परमिशन हो तो। यस यस, प्लीज बच्चन प्लीज। साहब का बागबान मूवी का एक डायलॉग है।
हमारे पास है वैसे 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, हमारे हाँ पास हाँ टाइम है। सो गाइज, मैं टाइम क्या आप लोग की परमिशन है तो मैं सुना सकता हूँ वो डायलॉग? प्लीज प्लीज ऑल योर्स बागबान मूवी में बच्चन साहब ने लास्ट में एक पूरी मोनोलॉग सोलिलोक की बोली थी, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। देवियों और सज्जनों, अभी अभी आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि आलोक मेरी तारीफ इसलिए करता है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो प्यार इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, मुझ में कई गुण है। प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो खुद एक अच्छा इंसान। देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। लेखक तो सोच के सागर में डूब के न जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो बस वही लिखा है जो जिंदगी ने मुझे लिखा है। क्या बात। भगवान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। यह किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। यह किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। यह किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। यह किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया। यह किताब है तरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थी मगर अब बरसों से खामोश है। जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब उन सीढ़ियों का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी, मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े और कल के अखबार की तरह रद्दी समझकर किसी कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती है। जिंदगी पेड़ की तरह होती है। और, और माँ बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते हैं। माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो कभी हरा भरा नहीं रह सकता है। इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाए पाए हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बेटा जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती है तो उसे कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराता है। एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों दे सकता है। जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले माँ बाप को किस जुर्म में आंसू और तन्हाई की सजा सुनाई जाती। अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो भी हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया। क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन माँ बाप को प्यार के बंधन में बांधकर भगवान ने एक किया है उन्हें वो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं क्या? इसी दिन के लिए इंसान औलाद पालता है, इसी दिन के लिए।
औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे। और रही मेरी बात तो मेरी चिंता तो अपनी जगह पर मंद है, क्योंकि हम अगर उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ समझ सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। हमें किसी से कोई उम्मीद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम इसलिए खुशकिस्मत है क्योंकि हमें जिंदगी ने एक ऐसा हम सफर दिया है जिसके साथ चलते चलते रास्ते आसान होते गए, जिसके साथ चलते चलते उलझने सुलझती गई। पूजा, थैंक्स फॉर बीइंग देयर। तुम हो तो हम है तो सब कुछ है, और ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। Superb. Speechless. थैंक यू सो मच गाइस। काफी लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आए, पायल के, निकिता के, अनीता के, हेमंत के, काफी लोग। और मेरा भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है अमित जी के साथ। हम लोग एक एयरपोर्ट के अंदर बैठे थे, मैं जस्ट उल्टा खड़ा था एंड मेरे को लगा मेरे साथ में अभिषेक बच्चन जितना लंबा आदमी को मैं टर्न कर रहा हूँ तो अभिषेक है, सामने अमित जी है, ऐश्वर्या है, सब लोग साथ में। वी हैड अ वंडरफुल टाइम। मैं मेरे बच्चों की ट्रूप के साथ इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर था एंड इट वाज इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल एंड बहुत मजा है। मतलब आई मेट हिम 3 times बट all the 3 times I had a wonderful experience with him. He is a very good guy. He's a very inspirational guy. Yes. आपको पता है मेरे घर में मैंने बच्चन साहब की फोटो लगाई। हाय क्या बात है। he is my mentor. He is my mentor. मैं उनको देखता हूँ, मैं उनको जीता हूँ। ऐसा हर फील्ड में हर किसी के पास होना चाहिए, एक ऐसा मेंटर एक होना चाहिए। हाँ, एक मेंटर होना चाहिए। Truly. Thank you so much, Payal, for your wonderful appreciation. पायल ने बहुत अच्छा लिखा आपके लिए। थैंक यू पायल। मोक्ष पंचाल ज्वाइन किया अभी, हितन यही करते हैं हम यहाँ पर, यही करते हैं हम लोग, यही करते हैं, हमारा यही काम है। अगर कोई बोलता है भरी सभा में सर एक डायलॉग सुना दीजिए, तो किसी भी फिल्म को उठा के हम बोल देते हैं। वेडनेसडे मूवी है ऐसी जो लास्ट में नसीर जी बोलते हैं वो पूरा डायलॉग कर लेते हैं, कभी तारे जमीन पर का सुना देते हैं। ये लास्ट सवाल है एक मुझे तो जवाब मालूम ही है। लोग जानना चाहते हैं कि थिएटर, एड या फिल्म, तीनों में से आपके दिल के बहुत नजदीक कौन है? कुछ नहीं, मेरे दिल के करीब है मेरी एक्टिंग, मेरा हुनर, जो मुझे तीनों जगह पे किसी भी रूप में मेरे पास आएगा जी। मुझे मालूम था कि यही आंसर आने वाला है। ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअली। तो मैंने पूछा, मैं किसी एक जगह पे क्यों बंधा रहा हूँ? मैं सिर्फ सीरियल ही क्यों करूं? मैं सिर्फ एड ही क्यों करूं? मुझे एक्टिंग रिलेटेड कुछ भी मिलेगा तो मैं करूंगा, चाहे वो थिएटर ही क्यों करूं। करेक्ट। अब जगदीश भाई मुझे बोलेंगे कि हेतल भाई एक जगह पे जाना है हमें, लेकिन वहां पर होस्ट नहीं है, आप होस्ट कर सकते हो, मैं होस्ट भी कर लूंगा। कोई मुझे बोला कि यहाँ पर कुछ एक्टर भी कर ले, तो एक्टर यही होता है ना, एक्टर खुले मन का होना चाहिए। जब एक्टर ही बंधा हुआ है तो वो लोगों को क्या खोल के बता सकता है? कुछ नहीं। ट्रू। एक्टर को बेशरम होना चाहिए बस। वासु, बट हर किसी के साथ नहीं, अपने आप के साथ। हाँ, बेशरम होने का मतलब है, यस आप तो समझ गए यार, लेकिन लोग अलग तरीके से लेते हैं यार। वो जब अलग हम दो मिलते हैं तो हम बेशर्मी कुछ, हम जब दोस्त मिल जाते हैं तो बेशर्मी कर लेते हैं, वो अलग बात है। करेक्ट। फिर लोग हमारे साथ बेशर्मी से पेश आए तो वो जनरली किसी भी एक्टर को अच्छा नहीं लगता है। You give respect, you take respect. Yes, it is two-way. It is vice versa. You give respect and take respect. हमें टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए हेतल। हाँ, यस। और मैं सबका आपके ब्रॉड पे जितने लोग हैं बहुत प्यार दिया मुझे। इट्स रियली वंडरफुल टू मीट यू गाइस। जगदीश, अगर तुमने ये इनिशिएट नहीं लिया होता तो ये शायद नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच टू यू। द क्रेडिट गोज टू यू कि मैं तो एक बार बोला, लेकिन यू टोल्ड मी 3 or 4 times कि हेतल, जगदीश और हेतल साथ में आने चाहिए, तो हम आ गए आज। बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। थैंक यू सो मच। और बहुत मजा आया एंड इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस विथ यू हियर।
एंड अब हम मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ ऐसा Yes. वर्कशॉप या ऑनलाइन काम या Let's do